Hello everyone, I am Rinku, working as an assistant professor in Department of Management in RPIT Technical and Medical Campus. Today we are discuss about the topic that is formation of a company. Company is an artificial person creating by law either incorporated entity. The formation of a company is a lengthy process intended. There are survival stages in formation of a company. These stages are like promotion, incorporation or registration, capital subscription and commencement of business. Of these stages, only first two are necessary for a formation of a private company. Of a public company not having any share capital, they have commerce business immediately after they have received a certificate of incorporation. Formation a company is a process it involving number of steps. Under section 3 subsection 1 a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more person in case of public company, 2 or more person in case of private company, or 1 person in case one man one person company by subscribing the name of the memorandum and the compiling with the requirement of act in respect of registrations. Section 3 subsection 2 a company formed under the subsection 1 may be either a company limited by share, a company limited by guarantee and unlimited company. First stage, promotion of a company. The promotion is the first stage of a formation of a company. Promotion may be defined the discovery of the business opportunities and the subsequent organization of fund, property and managerial ability into a business concern for purpose of making profit themselves. Promotion beings when a some discover an idea regarding the some business which can be probability undertaking a company and includes preliminary and detailed investigation of feasibility of idea, assembling of business element and the making provision of the fund necessary to launch the enterprise as going of the concern. Any person who assumes primary responsibility from this matter is termed as promoter. Promotion is the first stage in the formation of a company. It involves convincing a business opportunity, taking an initiative to form of a company so that practical shape can be given, exploiting and availing business opportunity. Definition of a promotion. Promotion may be defined as the discovery of a business opportunity and the subsequent organization of fund, property and managerial ability into a business concern for a purpose of making profit them. Stage of formation. First, discovery of ideas. Second, detail of investigation. Third, assembling the propositions and fourth, financial of proposition. कि बेसिकली अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो भी रेलिवेंट जो हमारे पास जो डिटेल होती है, प्रिलिमिनरी डिटेल होती है, जो इन्वेस्टिगेशंस जो की है हमने आइडिया से रिलेटेड, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर अपने आइडियाज़ को जनरेट करेंगे. सम बिजनेस जो आइडियाज़ हैं उनको सबसे पहले क्या किया जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा, उनको समवन रिगार्डिंग दी समवन बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा. जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके असेंबलिंग करने से रिलेटेड पहले हम उसके असेंबलिंग करने से रिलेटेड हम उसके जितने भी जो प्रिलिमिनरी जो डिटेल हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, चाहे वो आइडिया के फिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो फंड से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे प्रोविजन से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी या मैनेजर एबिलिटी से रिलेटेड हो, उन सभी को सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा. एंड थर्ड, असेंबलिंग दी प्रोपोजिशन. इसके अंदर जितने भी हमारे उसको लॉन्च कैसे करना है उस एंटरप्राइज को, उसके लिए फ़ंड कितनी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए कौन कौन से प्रोविजंस हमें करने हैं वो इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा. एंड लास्ट वन, फाइनेंशियल पोजीशन. इसे फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो कंपनी का जो पर्सन्स होता है वो डिसीजन लेता है कि उसको प्राइवेट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, पब्लिक कंपनी के अंदर करनी है या वन मैन कंपनी के अंदर करनी है. Promoter is a who person assemble the money and material into a going concern. A promoter may be an individual, a firm, an association of a person, or even a company. Whatever a person is or is not a promoter depend upon the fact each and particular. कि बेसिकली इसके अंदर जो प्रमोटर होता है हमारा वो पर्सन होता है जो प्रीलिमिनरी जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस रिलेटेड मैटर से रिलेटेड उन सभी को क्या करता है, वो लेट डाउन करता है, उनको असेंबल करता है और मनी एंड मेटेरियलिस्टिक फैक्ट को जितने भी जो प्रोफेशनली जो कैपेसिटी होती है एक पर्सन के अंदर वो एक एज ए प्रमोटर के अंदर हमारा आएगा.
अगर हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रमोटर्स को पर्सनस को डिफाइन करें, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ए सच इन द प्रोस्पेक्टस ऑन आइडेंटिटी बाय द कंपनी इज द एनुअल रिटर्न रेफर इन सेक्शन 92। कि फर्स्ट वन पर्सन कौन होगा? प्रमोटर, अगर हम बात करें कंपनी एक्ट के थ्रू, जिसका नाम हमारा प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया जाएगा। सेकंड, कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी, कि चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, स्टार्टिंग के जितने भी प्रिलिमिनरी जो हमारे डिसीजंस हैं, जितने भी हमारे जो वर्क हैं, वो पर्सन कंप्लीट करेगा। थर्ड इज द अकॉर्डेंस ऑफ द हुज एडवाइस डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज एक्सपेक्टेड बाय द एक्ट। जो हमारा कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर्स को हमारी डायरेक्शंस हैं, जो एडवाइस हैं, उनको ईजिली करेगा। वो हमारे किसके अंदर आएगा? प्रमोटर्स के अंदर आएगा। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ ए प्रमोटर, सबसे पहला प्रमोटर का मेन काम क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्लानिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कि सबसे पहले वो क्या करेगा? कंपनी की अपॉर्चुनिटी को, उसकी प्लानिंग को और जो आइडियाज़ है उसको क्या करेगा? सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको डिस्कवर करेगा, उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को वो क्या करेगा? फाइंड आउट करेगा। सेकंड, फिजिबिलिटी ऑफ स्टडीज़, उससे रिलेटेड डिटेल या डीप इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, चाहे वो प्री स्टार्ट प्रॉब्लम्स हो हमारा, चाहे वो प्लेस से रिलेटेड हो, चाहे रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, सप्लायर से रिलेटेड हो, मैन पावर से रिलेटेड हो, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो, सभी तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उनके सोल्यूशंस को वो आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। थर्ड, सेलेक्ट द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द गेटिंग ऑफ द कंसर्न, कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर सबसे पहला फर्स्ट डायरेक्टर को वो क्या करेगा? असाइन करेगा, क्योंकि वो ही एक पर्सन होता है जिसको उससे फुल्ली जो डिटेल है, जो डिसीजन है, ठीक है ना, जितने भी ऑफेंस करने वाला है उससे रिलेटेड, जितने भी वो प्रिलिमिनरी वर्क करने वाला है उससे रिलेटेड उसको गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके लिए फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, डिसाइडिंग द नेम ऑफ ए कंपनी, कंपनी का नेम को डिसाइड करेगा, उससे रिलेटेड अप्रूवल लेगा। हमारा जो रजिस्ट्रार जो ऑफिस होता है, लोकेशन ऑफ रजिस्ट्रार को दिखेगा। अमाउंट फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, कि वो शेयर कैपिटल किस फॉर्म में रखना चाहता है, कि मीन्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो उसके अंदर वो कंपनी को एज ए प्राइवेट कंपनी रखना चाहता है, पब्लिक कंपनी रखना चाहता है, वो एक प्रमोटर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग दी बैंकर, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, सिग्नेचरी ऑफ MOU, हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस हैं, प्रोफेशनलिज्म है, उन सभी को वो क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा कि कौन हमारा बैंकर्स हो सकते हैं, कि हमारा फाइनेंशियल जो हमारी आप इंस्टीट्यूट बोल सकते हो कि वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, ऑडिटर कौन होगा, लीगल एडवाइजर कौन होगा, उन सभी को सिलेक्ट करेगा। एंड सेलेक्टिंग एंड मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक प्रमोटर का, कि कंपनी से रिलेटेड जितने भी जो हमारे एग्रीमेंट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी से सेल करने से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी को परचेज करने से रिलेटेड हो, चाहे वो अंडरराइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे ब्रोकरेज से रिलेटेड हो, जितने भी जो प्राइमरी फंक्शन हैं, इन सभी को सिलेक्ट करना और उनको कंप्लीट करना एक किसका फंक्शन होता है? हमारे एज ए प्रमोटर का काम होगा। प्रिपरेशन ऑफ ए नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक MOU, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्टिंग करना और उसको प्रिंटिंग करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप बोल सकते हो उसका फंक्शन किसका होता है? प्रमोटर्स का होता है। मीटिंग द इनिशियल एक्सपेंसेस, कि जितने भी हमारे प्रीमियरी या इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी नोट डाउन करना। अरेंज द कैपिटल, चाहे वो इश्यू ऑफ शेयर हो, चाहे वो डिबेंचर से हो, चाहे वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से हो, उसको कैपिटल अरेंज करके हमें जो हमारे कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको प्रोवाइड करानी है। टू अरेंज रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, गेटिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ ए इनकॉर्पोरेशन एंड गेटिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ द कमिटमेंट ऑफ ए बिजनेस, ये सभी हमारा किसके फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? हमारी प्रमोशन की। प्रमोशन एक तरीके की हमारी जो प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो पर्सन जो हेल्प करता है वो आज हमारा प्रमोटर आता है। उसकी हमने डेफिनेशन को किया, हमने समझा कि फंक्शंस क्या हैं, कि हमारा जो प्रमोटर है वो किस तरीके की फंक्शनिंग करता है। अब बात करते हैं उसकी लीगल पोजीशन और स्टेटस ऑफ ए प्रमोटर, कि एक प्रमोटर इज ए नाइदर ए ट्रस्टी नोर एन एजेंट ऑफ ए कंपनी विच इन द प्रमोटर बिकॉम इज नो ट्रस्ट और नो प्रिंसिपल इज एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ इज एफर्ट। अभी क्या कहा जाता है कि जो हमारा प्रमोटर है उसकी कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होती। लीगल एंटिटी का मतलब, कहने का मतलब है कि ना तो वो एक कंपनी का एजेंट बन सकता है, ना ही वो ट्रस्टी बन सकता है, और ना ही वो ऑफिशियल ओनर बन सकता है, और ना ही वो एम्प्लॉय बन सकता है। बट सर्टेन फिडक्स ड्यूटीज लाइक ए एजेंट हैव बीन इम्पोज ऑन द अंडर कंपनी एक्ट. As such, instead he the fiduciary position, a position full of trust and confidence toward the company and original allotted of the share. बेसिकली वो फुल्ली डिस्कवर करेगा रिलेटेड टू दी फैक्ट इंक्लूडिंग दी प्रॉफिट मेड. इट मस्ट नॉट मेक इन दी एनी सीक्रेट प्रॉफिट आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन मेक ऑफ द बिहाफ ऑफ ए कंपनी.
Okay class, thank you.